Okay, hope everyone has done their homework. Homework, homework. Sum of 10 numbers असं काहीतरी आपलं homework होतं, right? Hope. So just to give you summary, आपण काय काय सुरुवात केलं? We started with the data types. मग data types चे 4-5 types, right? अलग अलग types हमने देखा. फिर उसके बाद we had what all different data types? Numeric, inside a numeric, integer, float, and complex. The next is boolean, true and false. The next is sequence. Sequence में string, list, tuple. Then dictionary. Then set and frozen set. Right? So clear. Then we started. In short, we checked which data type, what it's used for, how we use it, what are different types, what are different scenarios, right? अलग अलग सिनारियो में हमने अलग अलग डेटा टाइप्स में क्या क्या डिफरेंसेस है वो देखे, ब्रीफ में देखा, not in detail. And then we started with the functions. In the function, again there are different types such as inbuilt function, user defined function, right? And then inbuilt functions are nothing but where Python has already given us a written a code and we are using those functions, such as example absolute, binary, hex, print, type, int, right? str. So these are the inbuilt functions. And then the second type is user defined functions. So in user defined function, we create a function definition based on the requirement. So what requirement we have, we create the function and we call that function, right? There are two parts, function definition and then function call. Clear? And then it has a different types. Function takes arguments or parameters as an input. Okay, yes, Hemant. Hemant has commented some enter. Okay, yes, this works. For I in range, he has used the range and the loop for I in range. Okay, good. So it uses a loop. So this is one of the approach. But without using loop, also there is one more type we can use. Okay. So we'll Sir, see without today. using loop, how we do that? That's what we'll learn today. Okay. Okay, sir. So arguments, where we were arguments. So function takes argument or parameter you can call. Then again, depending upon number of arguments, like number one, number two, number three, how many arguments you have to pass those many values. जब भी आप फंक्शन कॉल करते हो आपको वो वैल्यूज और उतने वेरिएबल्स आपको पास करने हैं, नहीं तो यू विल गेट अ एरर, राइट? दैट वी हैव कवर्ड. यस, नो, क्लियर? सबको यहाँ तक क्लियर है? लेट मी प्रेजेंट माय स्क्रीन. ठीक है. देन उसके बाद ये देखिए, सम ऑफ एरर मिसिंग, रिक्वायर पोजिशनल आर्ग्यूमेंट वगैरह, राइट? ये देखा था नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट जो हम पास करते हैं. सो नंबर वन, नंबर टू, नंबर थ्री वगैरह अलग अलग. ये देखिए R1, R2 ऐसे दो नंबर्स थे, राइट? Then to like address this issue missing argument wala, then we started using a default arguments. Default arguments हम पास करते थे, so that even if we don't pass any argument हमारा function work हो जाए, नहीं तो it will give a error. So ये default कुछ भी set करते थे हम, is equal to 0, 10, 100, 20, whichever whatever is the requirement. ये देखिए यहाँ पे 10 वगैरह हमने set किया है, 10, 20, 30, 50. This is called a default argument, right?
फिर ये हो गया function definition, and this is nothing but a function call, right? And few more things about function. Function by default return statement हमने लिखा नहीं है, तो return क्या करेगा? none, none. if return statement हम लिखते हैं, मान लीजिए यहाँ पे return statement लिखा है argument 1 plus argument 2, तो वॉट एवर द कैलकुलेशन है आप जो रिटर्न कर रहे हो वो आपको रिटर्न पे मिल जाएगा। क्लियर? दोज हु आर कंफर्टेबल, मतलब जिन्होंने जावा पढ़ा है, सी प्लस सी प्लस प्लस, दोज people can correlate ki return, what is return statement, how it is used. But in our day to day activity we hardly use any return statement. Just FYI, you should know there's something called a none, you get a return, or by default return statement is there. So all good till this point? Okay. So one more application of the function, what you can say is, suppose I want to create a mark sheet for students. Okay, school, in a school I have to create a mark sheet. तो mark sheet में क्या होता है? अलग अलग स्टूडेंट का नाम, अलग अलग सब्जेक्ट, उनके मार्क्स एंड स्कूल का डिटेल। तो इसमें चेंज क्या होता है? स्टूडेंट का नाम चेंज होगा, स्टूडेंट के मार्क्स चेंज हो गए, बट डिटेल्स ऑफ हिज स्कूल, जो स्कूल का उसका डिटेल है, स्कूल का नाम, एड्रेस, फोन नंबर, विल दैट चेंज? नो, राइट? हर एक मार्कशीट में और स्कोर कार्ड में स्टूडेंट का स्कूल का डिटेल सेम रहेगा। सो इन दैट केस व्हाट वी कैन डू इज we will store the school information in one of the function, and every time I will call that function. मतलब स्टूडेंट का स्कोर कार्ड, मार्क्स वगैरह प्रिंट किया, उसके बाद वो प्रिंट मतलब कॉल किया, तो इससे क्या होगा? ऑटोमेशन। अननेसेसरीली आई डोंट हैव टू राइट एवरी टाइम स्कूल के जो डिटेल्स है, तो इसको ही हमने यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया है। आई हैव क्रिएटेड DEF, यूजर डिफाइंड फंक्शन, कॉन्टैक्ट colon, I am not passing any parameter or argument, and then colon, then इसके बाद है indent, right? Automatically indent आ जाता है। I am printing all the details, the contact details of the school, Delhi Public School, Bangalore, ये number, ये email ID, clear? Then full detail, फुल डिटेल में क्या रहेगा कि नेम ऑफ द स्टूडेंट, मार्क्स कितने मिले, मार्क्स इन मैथ, साइंस, इंग्लिश, देन ए, मतलब ए इज द नेम ऑफ द स्टूडेंट, ए हैज स्कोर्ड, बी मार्क्स इन मैथ्स, सी इन साइंस, दिस इन इंग्लिश। फिर इसके बाद मैंने ब्लैंक प्रिंट किया है, मतलब दिस इज अ ब्लैंक लाइन एंड फुल डिटेल। आई एम कॉलिंग दिस फंक्शन, मैं यहाँ पे भी कॉल कर सकता हूँ, बाद में भी कॉल कर सकता हूँ, नॉट एन इशू। ओके, maybe I will call afterwards। नीचे यहाँ पे है देखिए full detail। ओके, सो इससे क्या होगा कि let me call this function, name of the student Akshay, then math 77, sorry, not more than 100, 87, 88, enter। See, Akshay has scored 77 in maths, 87 in science, and 88 in English. So you can create something like this. And if I add this contact detail, if I call this function, copy, after my detail, I will add in this function only, function chaining। ये देखिए फुल डिटेल, स्टूडेंट के डिटेल, उसके बाद स्कूल का कॉन्टैक्ट नंबर, कॉन्टैक्ट डिटेल यहाँ पे प्रिंट होगा। इफ आई रन around, yeah, 77, 45, 88, okay, oh, ये हमने एग्जीक्यूट नहीं किया था, sorry, let me fill in quickly। Okay, so okay, so ये मेरे स्टूडेंट के डिटेल है, स्टूडेंट नेम, और ये उसके मार्क्स है,
यू कैन प्रिंट हॉरिजॉन्टल वर्टिकल जैसे चाहिए आपको प्रिंट कर सकते हो, नॉट अ बिग डील। और ये स्कूल का कॉन्टैक्ट नंबर। सो इफ आई चेंज दिस नेम राम और मार्क्स, ये स्कूल का डिटेल सेम आएगा, क्योंकि हम ये एज अ फंक्शन कॉल कर रहे हैं, राइट? वी आर नॉट मॉडिफाइंग एनी डिटेल्स। सो ये अलग अलग एप्लीकेशंस है फंक्शंस के, जहाँ पे भी आपको कुछ बना के रखना है एंड एवरी टाइम यू नीड टू कॉल। और कुछ कैलकुलेशन कॉम्प्लेक्स एक बार बना के रखो, उसमें सिर्फ वैल्यू इंसर्ट करो, वो आपको आउटपुट देना चाहिए। हर बार ये मतलब लॉजिक नहीं लिखना है। तो ऐसे इन रियल वर्ल्ड इफ यू गो इनटू कंपनी जो डेवलपमेंट होते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, जावा, पाइथन, तो ये सारे फंक्शंस वगैरह बना के रखे होते हैं सीनियर्स ने। तो आपको सिर्फ कॉल करना है, थोड़ा मॉडिफाई करना है आपके अकॉर्डिंग एंड देन यूज करना है। So this is how it happens, the development और बाकी चीजें। But in the data analysis it's hardly like कोड भी बना रहता है सब कुछ, only as per requirement आपको वो थोड़ा changes करने पड़ते हैं। From scratch hardly you will develop, मतलब कंपनी में सब कुछ बना रहता है, ऐसे बहुत स्क्रैच से आप कुछ नहीं डेवलप करते। ओनली थिंग जो लिखा है वो समझ में आना चाहिए आपको। ओके, क्लियर सबको? होप नोबडी इज वेटिंग। ओके, चलो। सो I gave you one homework regarding if I want to pass 10 numbers. So 10 is one of the example. You can pass unlimited number, not an issue. So one approach is what is already mentioned, is using a loop. So what is loop? We'll see. Loop is nothing but a iteration. मतलब आपको कुछ iterate करना है, सेम रिपीटेशन करना है किसी बात का, तो उसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लूप्स बोलते हैं। ओके, but there is one more concept called args. Args. Okay, this is available in Java as well. I'm not sure about C and C++, but it's available in Java. So there is a concept called args. So what it is, nothing but special type of variable. तो ये एक स्पेशल टाइप का वेरिएबल है और ये अनलिमिटेड इनपुट्स लेता है। मतलब जब वेरिएबल सीखे थे तो आइडियली एक वेरिएबल में एक वैल्यू स्टोर होता था, राइट? बट ऐसे भी कई वेरिएबल है उसमें आप मल्टीपल वैल्यू स्टोर कर सकते हो। मान लीजिए वन ऑफ वेरी ओल्ड एग्जांपल, ऐसे हम ड्रॉ करते थे, राइट? फिर वेरिएबल यहाँ पे कुछ नंबर लिखते थे, नंबर 1, फिर ये कुछ ऐसे था यहाँ पे, फिर एक स्टोर होगा वैल्यू, राइट? ऐसे दिस इज नथिंग बट वन वेरिएबल। बट आपने बहुत सारे डेटा टाइप्स देखे हैं, सच एज कलेक्शन में लिस्ट, टपल, तो उनका प्रॉपर्टी क्या है? वो अलग अलग, वो भी बहुत सारे नंबर्स स्टोर करते हैं ना। लिस्ट क्या करता है? अलग अलग डेटा टाइप्स एक साथ स्टोर कर सकता है। टपल क्या कर सकता है? अलग अलग डेटा एक साथ कंबाइन करके एक वेरिएबल में स्टोर कर सकता है, राइट? होप यू रिमेम्बर, आप लोगों ने होमवर्क किया है। कहाँ पे गया? ये देखिए, माई लिस्ट दिख रहा है क्या? माई लिस्ट नाम का क्या एक वेरिएबल है। इस वेरिएबल में हम वो क्या कर रहे हैं? नंबर स्टोर कर रहे हैं, 2 6 7, राइट? और इसका नाम है माई लिस्ट, यहाँ पे माई लिस्ट लिखता हूं मैं, राइट? ये क्या हो गया? नथिंग बट अ वेरिएबल। सो वी कैन यूज दिस इनसाइड आवर फंक्शन। ये प्रॉपर्टी है, लिस्ट की प्रॉपर्टी है, जहाँ मल्टीपल नंबर्स आप स्टोर कर सकते हो एक वेरिएबल के अंदर। इसको ही हम फंक्शन में यूज कर सकते हैं। इसको, इसी कंसेप्ट को बोलते हैं आर्ग्स, ARGS, आर्ग्स एंड क्वार्क्स। इस क्वार्क्स क्या देखेंगे हम, बट देर इज, आप डॉक्यूमेंटेशन पढ़ोगे आपको बहुत जगह पे आर्ग्स यूज किया हुआ दिखेगा। ओके, आर्ग्स, ARGS ऐसे लिखते हैं इसको, आर्ग्स। सो लेट अस सी कि इसको कैसे यूज करना है एंड वन आंसर फ्रॉम योर साइड। लेट अस सी आपका बेसिक क्लियर है कि नहीं है।
जो आपने टपल और लिस्ट पढ़ा है उसका अभी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन होगा यहाँ पे। तो मैं इसी प्रॉपर्टी को यूज करके एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ, ये देखिए, सम ऑफ मेनी आर्ग्स। आप नाम कुछ भी दे सकते हो, सम ऑफ 10 नंबर, सम ऑफ 20 नंबर, सम ऑफ अनलिमिटेड नंबर्स। यहाँ पे ये क्लियर डीएफ यूजर डिफाइंड फंक्शन, ये फंक्शन का नाम जो आप कॉल करने के लिए यूज करोगे। फिर यहाँ आर्ग्यूमेंट्स में जनरली हम लिखते थे num1 num2 num3 कॉमा करके, बट यहाँ पे मैंने क्या लिखा है देखिए, यहाँ पे एक स्टार दिया है और आगे वेरिएबल लिखा है, नंबर 1 है, आर्ग्स है, जो आपको वेरिएबल लिखना है वो लिखिए, बट यहाँ पे सिर्फ आपको स्टार देना है। ओके, स्टार। देन एज यूजुअल प्रिंट टाइप, मैं प्रिंट कर रहा हूँ एक्चुअली। ओके, विल गो वन बाय वन। पहले तो वो सारे प्रिंट करते हैं नंबर 1, है ना, और रिजल्ट को भी मैं फिलहाल ये कर देता हूँ, आई एम रिटर्निंग द रिजल्ट बाय द, यहाँ पे रिटर्न करने की भी कुछ जरूरत नहीं है। इफ आई वांट लेट मी, ओके, इतना बस है। मेरा एक फंक्शन है, वो आर्ग्स ले रहा है, आर्ग्यूमेंट्स मतलब आर्ग्स ले रहा है एंड प्रिंट कर रहा है। सो व्हाट आई विल डू इज आई विल सेंड द नंबर्स, लेट मी, ओके, यहाँ से प्रिंट भी निकाल देते हैं। ये फंक्शन डेफिनेशन, आई एम कॉलिंग दिस फंक्शन नाउ, इसको मैं, ओके, ये मेरा फंक्शन डेफिनेशन हो गया, डिफाइन हो गया, और ये मेरा फंक्शन कॉल है ना। ये देखिए, सम ऑफ आर्क्स, सम ऑफ आर्क्स, फिर यहाँ पे मैं नंबर पास कर रहा हूँ। सो लेट्स रन। ये क्या हो गया, डायरेक्टली जो जो मेरे नंबर भेजे थे वो सारे प्रिंट हो रहे हैं, राइट। तो मल्टीपल आर्ग्यूमेंट आई एम पासिंग, यहाँ पे मैं मल्टीपल आर्ग्यूमेंट पास कर रहा हूँ, इवन दो वेरिएबल एक है, बट मैंने कितने, मान लीजिए यहाँ पे मैं और नंबर ऐड कर देता हूँ, राइट, ये और नंबर ऐड कर देता हूँ, फिर से एग्जीक्यूट करता हूँ, ये देखिए और नंबर प्रिंट हो रहा है। Hemant, yes, using argument sum, yes, that's what we are learning, Hemant. Args, that's the args or argument you can say. Okay, चलो, तो ये आप अभी आपको पता चला वेरिएबल एक ही है बट आप मल्टीपल इनपुट दे रहे हो, इसी को यूज कर दीजिए सम में। अभी क्या करना है, पहले तो आइडियली आप एक वेरिएबल ऐसा क्यों बिहेव कर रहा है इसको चेक करना है आपको, तो क्या करेंगे आप, इसका टाइप चेक कीजिए है क्या ये, फिर उसके बाद आप सम कर सकते हो, प्रिंट कर सकते हो। लेट मी चेक इट्स टाइप, कॉपी, इसका टाइप भी चेक कर दीजिए, फिर आपको डायरेक्टली पता चलेगा कि हाउ वी आर यूजिंग दैट। रन, ये देखिए क्या आ रहा है, ये क्या बोल रहा है, टपल। तो इससे पहले हम क्या करते थे, सिर्फ वेरिएबल इनपुट लेते थे, तो वेरिएबल में इंटीजर जाता था, फ्लोट जाता था, कुछ स्ट्रिंग जाता था, बट यहाँ पे क्या जा रहा है, एज अ टपल भेज रहे हैं डायरेक्टली। और टपल का प्रॉपर्टी क्या है, मल्टीपल नंबर्स और मल्टीपल डेटा वो इन वन शॉट रिसीव करता है, स्टोर करता है, एक्सेप्ट करता है, राइट। अभी मुझे सम का फॉर्मूला लगाना है, तो देर इज अ फंक्शन कॉल्ड, इनबिल्ट फंक्शन कॉल्ड सम, और वो डायरेक्टली मैं यहाँ पे यूज कर सकता हूँ। देखिए, प्रिंट टाइप की जगह सम लिख दो आप। अभी रन कर देते हैं, आ गया 87। जो भी आप यहाँ पे भी कुछ भी ऐड करोगे, देर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑफ नंबर्स, राइट। You don't even have to use loop, you don't even have to use any other logic. Okay, ये फिर आप, how did I realize sum, because sum is an inbuilt function, तो sum के बारे में if you would have read documentation about sum, तो आपको ये लॉजिक पता चलेगा।
ओके, तो आज जाके डॉक्यूमेंटेशन थोड़ा पढ़िए, सम फंक्शन क्या 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 रिसीव करता है। ओके, सो इसलिए आपको ये मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स यू कैन रीज, और इसका ही प्रैक्टिकली नमपाई और पांडा जब हम आखिरी में सीखेंगे, जो हमारे पास बहुत सारा डेटा रहेगा, टेबल्स करोड़ों में, तो वो अननेसेसरीली वेस्ट नहीं करेगा, ऐसे डायरेक्टली एक आर्ग्यूमेंट बनाएगा 10 लाख लाइन का, भेज देगा, समेशन आ जाएगा उसको, ना उधर लूप यूज हुआ, ना उधर कुछ कॉम्प्लेक्स लॉजिक यूज हुआ। एक्चुअली जितनी बार आप लूप यूज करते हो उतना वो कैलकुलेशन बढ़ता है। ओके, तो इसीलिए लूप अवॉइड करना चाहिए। जो भी somebody was mentioning about वो क्या है, सॉरी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, आई डोंट नो, जो भी डेवलपर है, इफ यू वांट टू बी अ पाइथन डेवलपर और जावा डेवलपर, तो जो भी कोड लिखा है आपने उसको ऑप्टिमाइज्ड और इफिशिएंट वे में लिखने के लिए, और मान लीजिए एक टास्क दिया है, 4 लोगों को प्रोग्राम लिखने के लिए बोला है सेम, कौन सा प्रोग्राम अच्छा है ये कैसे डिसाइड होगा? मान लीजिए आंसर तो सही में आ रहा है सबका, तो फिर कैसे डिसाइड होगा किसने अच्छा प्रोग्राम लिखा है? मान लीजिए सम ऑफ 2 नंबर का प्रोग्राम लिखने के लिए लिया, तो आपने सब लोगों ने लिखा, सब लोगों का आंसर भी आ रहा है, बट अप्रोच अलग अलग है, किसी ने फंक्शन यूज किया है, किसी ने डायनामिक बनाया, किसी ने स्टैटिक किया है। सो हाउ हाउ आई शुड जज कि किसका अच्छा प्रोग्राम है? हाँ, तो ये जो आपका कोड लिखा है आपने, इसको जज करने के लिए 2 कंसेप्ट मतलब यूज किया जाता है, कॉल्ड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो नाम इतने कॉम्प्लेक्स है, ऐसा कुछ नहीं है, मतलब नाम बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, बट इसका मीनिंग बहुत सिंपल है। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी मतलब आपका प्रोग्राम कितना जगह ले रहा है, कब लेगा जगह, जब वो रन होता है तब रैम के ऊपर कितना जगह अलोकेट कर रहा है, एंड टाइम कितना ज्यादा टाइम ले रहा है, जो ज्यादा टाइम, जो कम टाइम लेगा, कम जगह लेगा, उसका अच्छा प्रोग्राम है ना। इतना ही सिंपल है। उस कैसे कैलकुलेट होता है, क्या कैलकुलेट होता है, वो अलग बात है, उसको आपको थोड़ा ऑर्डर ऑफ एन फैक्टोरियल, वो चीजें आपको पढ़ना पड़ेगा इफ व्हेनेवर यू नीड। आपको कभी सीखना है, कॉम्पिटिटिव कोडिंग बोलते हैं इसको, कंपटीशन, कोडिंग के कंपटीशन होते हैं, उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो आपको जब भी कॉम्पिटिटिव कोडिंग में जाओगे तब आप सीख लेना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कैसे कैलकुलेट करते, कैलकुलेशन। इन शॉर्ट, एक अंडरलाइन फैक्टर, वो जितने लूप रहते हैं ना, उतना आपका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ता है। मतलब एक लूप रहेगा तो n फैक्टोरियल के हिसाब से वो बढ़ता है। ओके, विदाउट लूप प्रोग्राम बहुत अच्छा चलता है, विद लूप उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ते जाता है। सो इट्स गुड प्रैक्टिस कि आप लूप कम यूज करो। ओके, क्लियर एवरीवन, व्हाट इज आर्क्स, क्वार्क्स कैसे यूज होता है? गुड, तो इसके बेसिस पे आप बहुत ज्यादा, इसके बेसिस पे आई वांट यू टू क्रिएट सम असाइनमेंट, क्रिएट कीजिए, होमवर्क। ओके, और कहीं पे एप्लीकेशन है क्या इसका, एक बार खुद से देखिए, रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन, और एक दो तीन प्रोग्राम लिखिए इसके ऊपर, है ना। आर्क्स, बाय द वे आई एम क्यूरियस, जो भी यहाँ पे ये नंबर 1 लिखा है ना, इसका टाइप हम चेक कर रहे हैं, ये टपल क्यों ले रहे हैं? ये लिस्ट भी हो सकता था ना, आई कैन पास द लिस्ट ऑल्सो, तो टपल ही क्यों? नहीं नहीं, ठीक है, ब्रैकेट की वजह से टपल है, बट जो पाइथन जिन्होंने बनाया, ये बाय डिफॉल्ट टपल ले रहा है ना, यहाँ पे ये टाइप में चेक चेंज नहीं कर सकता, ये आर्ग्यूमेंट जो आर्ग्स ले रहा है, इसका टाइप बाय डिफॉल्ट टपल रहता है हमेशा, तो ये लिस्ट क्यों नहीं होगा? मतलब ओके, यूआरएल, ओके, मतलब क्वेश्चन समझ में आया। ये ऐसा क्यों बना है कि इसका टाइप टपल ही आ रहा है? ये लिस्ट भी ले सकता था ना, जिसने भी ये बनाया कंसेप्ट। Given number should not be changeable. Yes, who are Alka, right? Yes, Yes. sir. Okay, good. You people are 100% correct. So that is the answer. But I want to know the thought process. Why you think कि ऐसा क्यों आया आंसर?
Actually, you are perfect, on point. That is what the answer is. It should not change. But ऐसा क्यों? आपको कुछ बैकग्राउंड है पुराना, और हाउ डू यू रियलाइज कि वही आंसर है? बहुत कम लोग दे पाते हैं, बट गुड. ओके, सो ये टपल लेने का रीजन ये है क्योंकि ये इम्यूटेबल होना चाहिए. ओके, इम्यूटेबल मतलब चेंज नहीं होना चाहिए. तो ऐसा क्यों बना है? मान लीजिए आपने भेजे 10 नंबर, ओके, और फंक्शन को मिले 9 नंबर. सिर्फ एक नंबर ट्रांसफर और डेटा ट्रांसफर के में मिस हो गया, तो चलेगा क्या? आपका आंसर करेक्ट आएगा? नहीं, राइट? तो ये डेटा इंटीग्रिटी बोलते हैं इसको. तो डेटा इंटीग्रिटी सेम रखने के लिए और मेंटेन रखने के लिए आपको टपल यूज करना पड़ता है. इसीलिए जिन्होंने भी मल्टीपल डेटा टाइप्स बनाए, वो उसने बहुत सोच के बनाया. एक लिस्ट बनाए जहां पे आपको डेटा चेंज हो गया तो चलेगा, एक डेटा चेंज नहीं होना चाहिए. और इस केस में जब भी आपका डेटा चेंज होता है, राइट, तो टपल एग्जीक्यूट ही नहीं होता, क्योंकि टपल को पूरा डेटा चाहिए. वो आधे अधूरे डेटा पे नहीं चलता ना, तो वो क्रैश हो जाएगा, बट वो गलत आंसर नहीं देगा. ओके, गलत आंसर देना ये इट इज नॉट एक्सेप्टेबल. भले आप एरर दे दो चलेगा, बट गलत मत दे दो, राइट? इससे क्या होता है? ट्रस्ट. इसका और एक रियल वर्ल्ड में एप्लीकेशन है. जो भी आप यूपीआई ट्रांसफर करते हो, बैंक डिटेल्स, आपने 10 रुपए, 100 जो भी है, 100 रुपीज आपने भेजा, सामने वाले को 90 रुपीज मिला तो चलेगा क्या? या ट्रांजैक्शन फेल हुआ हो चलेगा, विच ही कैन एक्सेप्ट. ट्रांजैक्शन फेल हुआ है तो ठीक है, आप वापस रिट्राई कर सकते हो, राइट? बट इन बिटवीन 10 रुपए कहीं तो चले गए, 90 रुपीज वहां तक रीच हो गया. अल्टीमेटली वो डेटा है ना, यू आर नॉट सेंडिंग एनी फिजिकल नोट, पार्सल वगैरह नहीं कर रहे ना. तो डेटा लॉस होने के चांसेस रहते हैं विद इन द प्रोसेस, क्योंकि पाइथन जब रन होता है, सिर्फ पाइथन नहीं रन हो रहा है. मेरे सीपीयू में अभी क्या क्या चालू है आप देख सकते हो. गूगल मीट शुरू है यहाँ पे, राइट? फिर नीचे ये कुछ कमांड लाइन शुरू है, फिर रिकॉर्डिंग शुरू है, पीछे बैकग्राउंड में कुछ शुरू है. तो ये मल्टीपल टास्क सीपीयू हैंडल करता है, तो देर इज अ चांस कि मिसमैच हो जाए. होता नहीं है, बट इन केस, राइट? तो ये सारे सिचुएशन हैंडल करने के लिए देयर इज अ टपल. सो व्हेनेवर यू हैव अ रिक्वायरमेंट जहां पे डेटा आप भेज रहे हो, रिसीव के टाइम पे एग्जैक्ट डेटा चाहिए, that time you should use immutable data types. अभी पाइथन में इम्यूटेबल टपल है, जावा में अलग अलग है. जावा में बहुत सारे इम्यूटेबल है, लाइक मतलब 4 से 5 इम्यूटेबल है. हैश, हैश मैप और ऐसे कुछ बहुत है वहां पे, लिंक्ड लिस्ट. तो जब भी आप कुछ भी डेवलपमेंट करते हो, तो पर्पस अंडरस्टैंड कीजिए, मैं किस काम के लिए कर रहा हूँ, उसके अकॉर्डिंगली आपको डेटा टाइप चूज करना है, डेटा स्ट्रक्चर चूज करना है. ओके, क्लियर सबको? सो अंडरस्टैंड. इसलिए बैंकिंग रिलेटेड कुछ भी आप एप्लीकेशन वगैरह डेवलप कर रहे हो, इन फ्यूचर कहीं करोगे, मेक श्योर आप इम्यूटेबल डेटा टाइप यूज करो. नहीं तो 100 रुपए भेजोगे, 10 रुपए जाएगा, 90 रुपए आपके जेब में गए डायरेक्ट. नहीं तो ऐसा कोड बनाओ कि हर बार वो 10 रुपए आपके जेब में जाना चाहिए, है? जब भी आप भेजोगे, है ना, राइट? ब्लैक मनी. सो चलो, क्लियर सबको? ऑनलाइन क्लियर? व्हाट वी आर लर्निंग, हाउ वी आर लर्निंग, क्या क्या हमने सीखा है. So there is one more type of a function what we are going to look now, which is, पहला स्टार्ट हुआ हमने इनबिल्ट से किया, देन हमने यूजर डिफाइंड फंक्शंस किए. अभी हम देखेंगे लैम्डा फंक्शंस. देयर इज थर्ड टाइप ऑफ फंक्शन कॉल्ड लैम्डा फंक्शन. ओके, लैम्डा फंक्शन क्या करता है? लैम्डा इज आल्सो नोन एज अ एनोनिमस फंक्शन. जैसे यूजर डिफाइंड में डीईएफ कीवर्ड यूज करते थे आप,
वैसे लैम्बडा फंक्शंस में लैम्बडा नाम का कीवर्ड यूज करना है, LAMBDA, लैम्बडा। ओके, और इसका एप्लीकेशन है, पहले शुरुआत हमने किया कि आपका प्रोग्राम ऑटोमेशन हो जाए, मतलब आपने कहीं तो प्रोग्राम लिख के रखा है, उसको सिर्फ कॉल करना है। इसको और एक स्टेप आगे जाके मुझे एक लाइन में फंक्शन लिखना है, एक लाइन में पूरा प्रोग्राम लिखना है, कोड लिखना है, तो उसके लिए हम लैम्बडा फंक्शन यूज करते हैं। ओके, इससे क्या होता है, अगेन स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और कम हो जाता है, क्योंकि एक लाइन में ये एग्जीक्यूट होगा। तो इसका ही और एक अगला नेक्स्ट वर्जन ऑफ फंक्शन इज कॉल्ड लैम्बडा। तो लैम्बडा को कैसे लिखते हैं, ये देखिए, लैम्बडा आर्ग्यूमेंट्स एंड एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन इज नथिंग बट अ लॉजिक, आर्ग्यूमेंट्स मतलब जो आप पास कर सकते थे, आर्ग्यूमेंट्स, पैरामीटर्स एंड आर्ग्यूमेंट्स। तो लैम्बडा लिखना है, डायरेक्ट आर्ग्यूमेंट लिखना है, ना कि डीईएफ और उसके नाम, ऐसा कुछ नहीं लिखना है, मतलब ये डीईएफ नहीं लिखना है, सर स्क्रीन ये रिकॉर्ड नहीं है। ओके। बाकी लोगों को दिख रहा है क्या? ओके, अलका यस, ओके, लॉट ऑफ पीपल आर सेइंग यस। फिर आपका नेटवर्क इशू है आई गेस, ओके क्योंकि सर, आई बाकी सर। लोगों को दिख रहा है। ओके, यस, हाय निखिल। ओके, तो क्लियर। तो इसको कैसे लिखना है, मैं नाम डीएफ नहीं लिखूंगा और नाम नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट आर्ग्यूमेंट लिखूंगा, फिर ये कोलन और ये इंडेंट नहीं चाहिए, डायरेक्ट लॉजिक लिखूंगा, दैट्स इट, आर्ग्यूमेंट एंड लॉजिक, लैम्बडा कीवर्ड चिपका दो उसके आगे। तो ये हो गया एक लाइन में कोड। क्लियर। इसको और ऑप्टिमाइज करने के लिए, क्योंकि जब भी आप नंबर ऑफ लाइंस बढ़ाते हो कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ता है। ओके, सिंपल लॉजिक है। तो जितना छोटे, मतलब जितना कम लाइन का कोड, उतना इफिशिएंट, ऑप्टिमाइज्ड। सो लेट्स सी कैसे लिखना है। सो आई विल स्टार्ट विथ लैम्बडा argument x comma y is equal to 1 is equal to 1, because default arguments without 1 is equal to लिखा है नीचे, देखिए एडिशन का मैंने, सॉरी, ओके, देखिए एडिशन इज इक्वल टू लैम्डा एक्स वाई जेड कोलन एक्स प्लस वाई प्लस जेड। तो ये क्या है, मेरा लॉजिक, और ये क्या है, मेरे आर्ग्यूमेंट, और ये लैम्डा कीवर्ड, और ये एक वेरिएबल में स्टोर करना पड़ेगा आपको, एंड देन पास कीजिए। ये देखिए एडिशन, ये मेरा एडिशन, 3 नंबर 10 20 30, x में 10 जाएगा, y में 20, z में 30, तो इस तीनों का मल्टीप्लीकेशन होके, रिटर्न होके, सब कुछ होके आपको आंसर मिलेगा। यू डोंट इवन हैव टू डू एनीथिंग। लेट्स रन। ये देखिए, लेट मी चेंज दिस वैल्यूज, रन। जो आपने 3-4 लाइन में कोड लिखा था, आप एक लाइन में लिख सकते हो। So practice कर, whenever you practice about the function, start with the user defined function और उसी का lambda function लिखना ट्राई कीजिए। ओके, lambda के भी अलग अलग वर्जन्स है, lambda function का प्रैक्टिस कीजिए, so that आपको समझ में आए। डायरेक्टली lambda function लिखने जाओगे तो it will create some confusion, क्योंकि ये सिर्फ सिंपल, यहाँ से आगे हम कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट देखने वाले हैं, तो वो मतलब लूप वगैरह एक लाइन में लूप कर सकता हूँ मैं डायरेक्टली, मतलब ये लैम्बडा लॉजिक लूप, ये सब कुछ एक लाइन में बन सकता है, वो हम बनाएंगे, बट उससे पहले आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ओके, गुड। सो नॉट ओनली पैरामीटर्स, आई कैन पास डिफॉल्ट पैरामीटर्स एज वेल, जो मैंने x n plus y किया है, x into y। ये देखिए मल्टीप्लाई नाम का मैंने फंक्शन किया, इसको कुछ नहीं पास किया, इसने डिफॉल्ट लिया। इफ आई पास समथिंग, टेक समथिंग 100, 60 और 44, एग्जीक्यूट, आ गया आंसर, सिंपल। सो लैम्डा फंक्शंस को भी और एक नाम है कॉल्ड एनोनिमस फंक्शन। एनोनिमस क्यों? क्योंकि इसका नाम नहीं है कुछ। हमने डीएफ किया है क्या? डीएफ देख ऐसा कुछ नाम लिखा है क्या? नहीं, राइट। तो इसीलिए हमने एक सिर्फ वेरिएबल डिक्लेयर किया है, बट it doesn't has any name, so it's called anonymous function as well.
ये सेम एप्लीकेशन है इन जावा एज वेल। जावा में भी सेम लैम्डा फंक्शन है, उसका भी काम सेम है। ऐसे ही वर्क होता है, आर्ग्यूमेंट पास करते हो, बाद में आप लॉजिक पास करते हो। उसमें तो बहुत ज्यादा यूज होता है क्योंकि रेगुलर कोड लिखने के लिए बहुत ज्यादा लाइंस लगते हैं जावा में। 8 से 10 लाइन का कोड एक लाइन में लिख सकते हो। सो मोस्टली जो भी डेवलपर रहते हैं वो लैम्डा यूज करते हो, जावा डेवलपर। ओके, सो इवन तो आपको इंटरव्यू में किसी को मतलब इंटरव्यूअर को दिखाना है कि यू नो पाइथन वेरी वेल, तो लैम्डा फंक्शन लिख के दिखाओ उसको, तो उसको समझ में आएगा कि यू आर एडवांस यूजर। एक्सपीरियंस लोग रेगुलर फंक्शंस यूज नहीं करते क्योंकि इट इज अगेन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। सो इसलिए स्टार्ट यूजिंग लैम्डा फंक्शन, सो यू विल हैव अ गुड इंप्रेशन। तो उसको समझ में आएगा कि आपको पाइथन अच्छे से आता है। सो दीज आर, ये शॉर्ट मतलब ऐसे टिप्स रहते हैं। अनकॉन्शियसली आप सामने वाले को बता रहे हो कि आपको बहुत आता है, तो वो आपको पाइथन पे ज्यादा पूछेगा नहीं, वो देन ही विल टेक सम अदर सब्जेक्ट, है ना। अननेसेसरीली व्हाई टू गिव समबडी एन अपॉर्चुनिटी। सो व्हेनेवर यू आर आस्क्ड, मतलब आपको कोई फंक्शन लिखने के लिए बोलेगा, कुछ लिखने के लिए बोलेगा, तो ट्राई टू यूज इट इन अ लैम्डा। इट शोज कि आप अच्छे से आपको पाइथन आता है। क्लियर ऑनलाइन? So write two lambda functions for subtraction and power, raise to वगैरह को जो भी हमने सीखा है ना वो यूज करो, नहीं तो बाकी के जो जो इनबिल्ट फंक्शन सिंपल सिंपल प्रोग्राम आपको आते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, नहीं तो कुछ सिंपल नाम, आपने कुछ नाम पास किया है उसको कैपिटल करना, स्मॉल करना, राइट। छोटे छोटे सिंपल प्रोग्राम्स यू कैन स्टार्ट राइटिंग। तो नेक्स्ट जो हम देखेंगे, तो दिस इज ऑल अबाउट द फंक्शन, जो भी दो तीन टाइप है। देयर इज वन मोर टाइप कॉल्ड रिकर्सिव फंक्शंस। तो रिकर्सिव फंक्शन नाम का भी एक टाइप होता है। सो दैट इज, आपने वो इंसेप्शन मूवी देखा है क्या? इंसेप्शन मूवी में क्या रहता है, दे गो इनटू, मतलब सो जाते हैं, फिर उनको एक सपना आता है, तो फिर वो सपने में चले जाते हैं। मतलब एक प्लॉट रहता है, किसी को खून होता है, वो खून नहीं हो जाए इसके लिए वो क्या करते, सोते हैं, सोने के बाद सपने में जाते हैं, फिर सपने में ऐसा कुछ चेंज करते हैं सो दैट रियलिटी चेंज है। सपने में भी सोते हैं, फिर वापस और एक सपने में जाते हैं, वहां पे भी सो जाते हैं, वहां पे और एक सपने में जाते हैं, राइट। इंटरस्टेलर नाम, सॉरी कौन सा, इंसेप्शन मूवी है, गुड वॉच, मतलब बहुत एकदम मतलब परफेक्ट है वो मूवी। विद टू एक्सप्लेन अ रिकर्सिव फंक्शन भी ऐसा ही होता है। मान लीजिए मैंने क्या किया, ये हमारा सम ऑफ फंक्शन है, आर्क्स, और सिंपल लेते हैं, ये बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। ये देखिए डेफ कांटेक्ट है, मैं इस फंक्शन को कैसे कॉल करता हूँ, डायरेक्टली ये कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ, राइट, यहाँ पे नीचे, तो ये कॉल हो गया। जब भी ये कॉल होगा, अभी मान लीजिए लेट कॉपी, और यहाँ पे मैंने ये कॉल किया, ये फंक्शन कॉल हुआ, तो इतना डिटेल प्रिंट हो गया, राइट, यहाँ पे स्टॉप हो गया। बट मैंने नीचे ये लिखा, अभी क्या है, ये क्या है, फंक्शन कॉल है वापस, राइट, किस फंक्शन को, इसी फंक्शन को कॉल है, फिर ये फिर वापस एग्जीक्यूट होगा, फिर वापस ये क्या है, फंक्शन कॉल, तो वापस इसी फंक्शन में जाएगा, तो ये यही पे ऐसे घूमते रहेगा, राइट। तो एक फंक्शन के अंदर फंक्शन, फंक्शन के अंदर फंक्शन, फंक्शन के अंदर फंक्शन। So this is nothing but an example of recursive function. Okay? तो इसीलिए यहाँ पे आपको टर्मिनेटिंग कंडीशन डालना पड़ेगा, ऐसे कुछ तो पैरामीटर चेंज करना पड़ेगा कि ये हर बार फंक्शन कॉल हुआ, मान लीजिए इसको बोलते हैं काउंटर, इसको यहाँ पे मैं बोलता हूँ काउंटर, और बैलेंस, बैलेंस में रखिए 10, और हर बार फंक्शन कॉल हुआ तो ये 10 का नंबर चेंज होना चाहिए। ओके, 10 का 9, 8, 7, ऐसा कुछ तो लॉजिक लिखना पड़ेगा आपको, 10, 8, 7, 9, फिर आखिरी में जब 0 आए तब वो अपने आप फेल हो जाना चाहिए, राइट। सो दिस इज नथिंग बट हाउ रिकर्सिव फंक्शन वर्क्स। मैं फंक्शन के अंदर ऐसे करते जाऊंगा जब तक मेरा कुछ ना कुछ काउंटर, बैलेंस, ऐसा कुछ एक वेरिएबल रखूंगा जो ये लूप को ब्रेक करे। क्लियर?
तो ये इतना एडवांस हम नहीं देखेंगे बिकॉज आपने इंसेप्शन मूवी नहीं देखा है ना। और जिन्होंने देखा है उनको डायरेक्टली ये ट्राई कर सकते हैं। दिस इज नथिंग बट एप्लीकेशन। यहाँ पे ये कोड रन कीजिए। ओके, हैंग हो गया तो डोंट ब्लेम ऑन मी। ये आपको रैम अल्टीमेटली ये ये क्या करेगा, रैम के ऊपर आप मेमोरी ब्लॉक करते जाएगा करते जाएगा करते जाएगा। एक टाइम आएगा आपका रैम पूरा भर जाएगा, कंप्यूटर शट डाउन हो जाएगा, है ना। नथिंग, नॉट अ बिग डील। सो यू कैन ट्राई रनिंग दिस कोड, मे बी ये हो जाएगा। आई विल रिमूव। क्लियर। तो इतना एडवांस हम नहीं करेंगे एक्चुअली। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन रीड मोर अबाउट रिकर्सिव फंक्शन। इसका यूज होता है राइट अ फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर, फाइंड आउट अ फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर। ये वेरी बेसिक एग्जांपल है। इस एग्जांपल में हमने रिकर्सिव यूज किया है। ऑनलाइन ये फंक्शन प्रोग्राम लिखो कहीं पे भी, फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर, वहां पे भी रिकर्सिव यूज किया होगा। फैक्टोरियल का नंबर मतलब ये देखिए ऐसा, 4 का फैक्टोरियल क्या रहता है, इज इक्वल टू आप क्या करते हो 4 इंटू 3 इंटू 2 राइट 24. इंटू 1। तो ये क्या है, मैं एक ऐसा फंक्शन लिखूंगा हर बार नंबर कम हो जाए एक से। एक ऐसा फंक्शन जहां पे हर बार वो एक नंबर में भेजूंगा उसको, वो मुझे क्या रिटर्न करेगा, n-1 रिटर्न करेगा। मैं n भेजूंगा मतलब मैंने 4 भेजा तो उसने 3 रिटर्न करना चाहिए, ऐसा ही लिखूंगा फंक्शन। फिर 3 भेजा तो वो क्या रिटर्न करना चाहिए, 2। 2 भेजा तो क्या रिटर्न करना चाहिए, 1। इसको कैसे लिखते हैं, df और क्या फैक्टोरियल, और यहाँ पे आप नंबर पास करोगे, नंबर num1, और रिटर्न क्या कर रहे हो आप, रिटर्न num1 -1, इतना ही रिटर्न कर रहे हो गया ये आपका। अभी मैं हर बार एक num1 को 4 भेजूंगा तो मुझे रिटर्न में क्या आएगा, 3 आएगा। 3 भेजूंगा तो रिटर्न में 2 आएगा। 2 भेजूंगा तो 1, 1 भेजूंगा तो 0, राइट। फिर बाहर कहीं तो एक लॉजिक लिखिए, जब भी नंबर मेरा 0 हो जाए प्रोग्राम स्टॉप होना चाहिए, ऐसा कुछ लॉजिक लिखना पड़ेगा आपको, बस हो गया रिकर्सिव, है ना। इसको ही थोड़ा अच्छे से लिखते हैं ऑनलाइन, आप देखिए कैसे लिखना है। ओके, सो नेक्स्ट व्हाट वी विल सी इज, जैसे हमने अभी एक फंक्शन को ऑटोमेट करना सीखा, मतलब एक कहीं तो कोड किसी ने लिख के रखा है उसको हम सिर्फ कॉल कर देते, राइट। अभी आप बोलोगे सर हर बार, मान लीजिए मुझे एक रिक्वायरमेंट है, ये जो फंक्शन कॉल हो रहा है हर बार, ये फंक्शन मुझे 10 बार कॉल करना है। तो आप क्या आप 10 बार ऐसा फंक्शन कॉल लिखोगे, मान लीजिए जस्ट एन एग्जांपल, ये एडिशन ऑफ 3 नंबर, ये मुझे 10 बार कॉल करना है, तो मुझे ऐसे 10 बार लिखना पड़ेगा ना, राइट। मान लीजिए मुझे सम एक्स अमाउंट ऑफ टाइम 100 टाइम्स 200 टाइम्स करना है, तो शुड आई स्टार्ट टाइपिंग 100 टाइम्स 200 टाइम्स, नो राइट। इसके लिए भी कुछ ऑटोमेशन चाहिए, क्योंकि हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख रहे हैं, इसमें कुछ मैनुअल वर्क नहीं होगा, मतलब ऐसा टाइप करना इसमें पाप है, समझ में आया। सब कुछ ऑटोमेशन होना चाहिए, इसीलिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बने हैं। इतना ऑटोमेशन होके अभी एआई आ गया है, कोई काम ही मत करो, राइट। उसका ही एप्लीकेशन है, क्योंकि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किसी ने बनाया था, उसने इसी मतलब फंडामेंटल को याद रखा था कि मुझे मैन्युअल काम नहीं करना है, राइट। तो इसीलिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप हुआ, तो ऐसे ही ये डेवलप होते रहेगा। तो एआई जो भी बना रहे लोग, उसको भी ऑटोमेट करने के लिए और एक एआई आएगा जो सिर्फ एआई बनाएगा, राइट। उसको बोलते हैं एआई एजेंट्स। बाय द वे ऑलरेडी रेडी है अभी, तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, मतलब डोंट थिंक कि वो बहुत दूर है, वो ऑलरेडी रेडी है। मतलब एक एआई उसका ही रिप्लिकेट बनाता है, उसके जैसे 10 लोगों को बनाता है, 10 लोगों को अलग अलग काम देता है, उसको बोलते हैं एआई एजेंट्स। वो ऑलरेडी कर रहे हैं लोग, ओके। सो चैट जीपीटी का नया वर्जन जो आएगा जीपीटी 5 वगैरह, तो एजेंट बेस्ड रहता है। एजेंट बेस्ड मतलब मुझे एक काम दिया किसी ने, तो मेरे ही
10 रिप्लिका बनाऊंगा, हर एक को मैं अलग अलग काम असाइन करूंगा। रोबोट मूवी देखा है ना? हाँ, इफिशिएंसी सब कुछ सेम, सब कुछ सेम। तो दिस इज ऑलरेडी इन वर्क, क्योंकि यही होता है जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसने सोचा होगा, फंडामेंटल यही था कि मुझे मैन्युअल काम नहीं करना है। द मोमेंट आई स्टार्ट रिपीटिंग एनीथिंग, उसका कोड मुझे चाहिए, खत्म। कुछ भी रिपीट करो आपको। तो ये अंडरलाइंग प्रिंसिपल है जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो इसीलिए ये बहुत इसमें ऑटोमेशन होता है। तो इसीलिए अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, अलग अलग डेवलपमेंट होता रहता है आईटी में। ऑनलाइन आई होप यू आर एबल टू कनेक्ट कि क्या हो रहा है क्या नहीं है ना? अभिजीत, अलका, अनिकेत, अथर्व, गौरव, यस सर। समझ में आ रहा है ना क्या हो रहा है? शाही, Yes, sir. निखिल, Yes, sir. सर स्नेहल, थोड़ा थोड़ा। विजय, ओके Yeah. ओके गुड। चलो, सो क्लियर सबको कैसे अलग अलग फंक्शंस है, अलग अलग टाइप्स है। मोस्टली बाय एंड लार्ज यही 4 टाइप है, डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट आप ये यूज कर सकते हो। तो इसीलिए फंडामेंटल जो भी आप प्रोग्राम करोगे उसका एम यही रहना चाहिए कि ये मैं वापस नहीं करूंगा, खत्म। एक बार मैंने लिखा तो ये 100% वर्क होना चाहिए, और वर्किंग सारे सिचुएशन में वर्क होना चाहिए। तो अलग अलग केसेस रहते, ठीक है। चलो, सो नेक्स्ट विल सी, जैसे हमने ये रिपीटेशन करने के लिए अलग अलग फंक्शन हमेशा कॉल करना है ना, तो ये अवॉइड करने के लिए देयर इज समथिंग कॉल्ड कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स। मतलब फ्लो है एक, मुझे 100 बार रिपीट करना है, ये रिपीट करने के लिए अलग अलग स्टेटमेंट लिखना पड़ता है, और अलग अलग कुछ फंक्शंस बनाए हैं, फंक्शंस नहीं बोल सकते इसको, कई कीवर्ड्स है और कुछ सिंटैक्स है, वो मैं यूज करके ये फ्लो बना सकता हूँ। ओके, सो लेट अस सी व्हाट इट इज एंड हाउ टू यूज। पहले तो देयर आर एक इफ नाम का रहता है कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट यूजिंग इफ, एल्स एंड एल इफ। ओके, इफ एंड एल्स नाम का एक कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट है, ये दोनों कीवर्ड है, ये यूज करके आप फ्लो को कंट्रोल कर सकते हो, मतलब कितने बार रिपीट होना चाहिए कंट्रोल कर सकते हो। देयर इज वन मोर टाइप कॉल्ड व्हाइल, है क्या? नीचे व्हाइल, व्हाइल यूज करके भी आप सॉरी लूप्स में व्हाइल फॉर लूप है, सॉरी देयर आर टू, व्हाइल एंड फॉर और वन एक है इफ। इफ से क्या होता है कि मैं कंडीशन बेस्ड कर सकता हूँ, मुझे 100 टाइम्स रन करना है तो आई कैन राइट समथिंग एंड गेट इट एग्जीक्यूटेड। So let's run something called conditional statements. Okay, तो ये कैसे लिखा जाता है, इसको ब्रांचिंग भी बोलते हैं। ब्रांचिंग इज नथिंग बट ये कंडीशन सेटिस्फाई हुआ तो ही काम कर, नहीं तो मत कर। सो वन ऑफ द मतलब आपके ऑटोमेशन का एक स्टेप है ये, जहाँ पे भी आपको कुछ कंडीशन चेक करना है, जैसे हम रिकर्सिव में कंडीशन चेक करना है, भैया 0 हो गया नंबर 1 तो स्टॉप करो, ये हो गया कंडीशन, राइट? तो ये कंडीशन चेक करने के लिए वी हैव समथिंग कॉल्ड इफ, elif एंड if else स्टेटमेंट। सो उसको कैसे लिखा जाता है, देयर इज इफ, एक मैं कीवर्ड लिखूंगा, फिर उसके बाद कंडीशन लिखूंगा, कंडीशन जो क्या है मेरा, नंबर इज लेस देन 0, जो भी रहेगा, फिर उसके बाद कोलन जो फंक्शन में भी देता था, फिर ये ऑटोमेटिकली इंडेंटेशन आ जाएगा यहाँ पे, फिर आप जो स्टेटमेंट लिखना है लिखिए। क्लियर? सो लेट अस सी इसको कैसे एक्चुअल में लिखा जाता है। सो कंडीशन मतलब क्या? कंडीशंस मतलब नथिंग बट अ लॉजिकल स्टेटमेंट। If number 1 is greater than 10, this is nothing but a condition or a logic. Less than or equal to, greater than, smaller, is equal to, और राइट, ये सारे क्या है, लॉजिकल स्टेटमेंट्स। कंपैरिजन ऑपरेटर्स जो हमने देखे थे, कंपेयर करने के लिए हम जो यूज करते हैं, दोज आर आल्सो नथिंग बट कंडीशंस। तो ये कंडीशन है, ये कंडीशन है, तो वो कंडीशन हमें लिखना है वहां पे,
So let us see, एक number मैंने लिया है number 1 which is greater than 10. By the way, number 1, let me declare it first, is equal to क्या लिखूं, 20. चलो, तो number 1 मेरा 20 है. So what will be the answer? number 1 greater than 10, मतलब यहाँ पे ऐसा होगा ये, right? तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर क्या है? 20 greater. True. True. यस, तो यस को प्रोग्रामिंग में क्या बोलते हैं? ट्रू, राइट? तो ट्रू ऐसा आएगा, राइट? ट्रू ऐसा आएगा. ओके, T गुड. capital. हाँ, लेट्स रन. तो ये कैसा ट्रू आया और ये ऐसा. बाय द वे, ये दोनों में डिफरेंस है. डोंट ऐसे मत देखो यार, ये डिफरेंस है ना. ऑनलाइन डिफरेंस है, सेम है वो, और Different मुझे है ही लग sir. रहा है कि डिफरेंस है. Different. आज कि की मेरा वैल्यू के इंग्लिश हिसाब से तो खराब है. डिफरेंट है. ओके, नहीं तो एक पॉइंट के लिए लगा कि मेरा इंग्लिश खराब है भाई. ट्रू है, ट्रू सेम. ओके, इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? एनीवन, एनी गेस? इसको एक कुछ नाम है. Case Boolean sensitive. value. इसका नाम है सेम 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 बट डिफरेंट. ओके, गुड. यस अतर, इस प्रॉपर्टी को क्या नाम है? सेम सेम बट डिफरेंट को? वेरी गुड नेम. Boolean value. ओके, गुड. बुलियन, राइट? मस्त, गुड. आप लोग बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हो लगता है ना? ओके, दिस Sir, इज it's a कॉल्ड अ case sensitive property. इसको बोलते हैं केस सेंसिटिव. बाय द वे, व्हाई आई एम आस्किंग कि आपको ये नाम याद रखना चाहिए. अगेन, इफ यू ट्राई टू बी मोर स्पेसिफिक, राइट, तो ये वर्ड आप यूज करोगे. स्पेसिफिक, केस सेंसिटिव हो गया, और इम्यूटेबल, म्यूटेबल, ऑर्डर्ड, अनऑर्डर्ड कलेक्शन. तो इंटरव्यू में आपको थोड़ा आसानी होगा, और यू विल फील इजी टू एक्सप्लेन. मतलब इंटरव्यूअर को आपको एक्सप्लेन नहीं करना पड़ेगा कि आप क्या बोलना चाहते हो. नहीं तो हमेशा ऐसा होता है कि नहीं सर, वो सेम है बट सेम बट डिफरेंट, ऐसा एक्सप्लेन करना पड़ेगा फिर, है ना? तो वो बोलेगा सेम बट डिफरेंट. ठीक है, अभी मुझे पता सेम बट डिफरेंट क्या है फिर, राइट? तो ये अननेसेसरीली गलत इंप्रेशन चला जाता है. मतलब ऐसा लगता है कि आपको एक्सप्लेन नहीं करना आता. वैसे भी आपका इंग्लिश इतना अच्छा है नहीं कि आप एक्सप्लेन कर पाओगे कुछ, है ना? तो व्हाई टू अननेसेसरीली स्पेंड मोर टाइम, और इससे आपका मोटिवेशन भी कम हो जाएगा, क्योंकि आप एक्सप्लेन, आपको आता है बट एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो, है ना? बेटर एक्सप्लेन. ओके, हायर पैकेज, गुड. ओके, नॉट एन इशू अथर, बट बी माइंडफुल कि आपको क्या बोलना है इंटरव्यू में. यू कैन नॉट यूज, और आपको अननेसेसरीली कुछ भी बोलोगे एंड देन यू नीड टू जस्टिफाई. सो इफ योर कम्युनिकेशन इज अ मतलब मोस्टली कम्युनिकेशन स्ट्रांग नहीं रहता, सो अननेसेसरीली इसमें टाइम मत स्पेंड कीजिए कि मुझे केस सेंसिटिव कैसे एक्सप्लेन करना है सर, ये अलग है, और ऑर्डर्ड रहता है सर, हम जो इनपुट देते हैं वही आउटपुट आता है. तो ऐसे डोंट वेस्ट, मतलब ऐसे कंफ्यूज मत करो बाकी को भी, मतलब बाकी लोगों को. सो आपका इंटरव्यू सक्सेसफुल होना है, आपको कॉन्फिडेंटली करना है, तो यूज दिस ट्रिक्स जो मैंने बोला. कि एक तो लैम्डा फंक्शन यूज करो, तो एटलीस्ट उसको लगेगा कि आपको बेसिक तो आता है, आप एडवांस लेवल का कुछ काम करते हो. एटलीस्ट वो तो इंप्रेशन चला जाता है. आता है नहीं आता है वो अलग बात है, दैट इज डिफरेंट, बट ठीक है. देन यूज दिस वर्ड्स, ये जो जो इम्पोर्टेंट वर्ड है जो हम सीखते हैं हर रोज, राइट? सो बी माइंडफुल. इससे क्या होता है कि थोड़ा आपका इंटरेक्शन कम होता है. नहीं, okay, not an issue, sir, but good. We got a good, like, I could able to explain why it is important to remember case sensitive, right? Okay, चलो.
लेट्स स्टार्ट विद द फ्लो स्टेटमेंट। फ्लो स्टेटमेंट में कंडीशन लगता है, कंडीशन अलग अलग होते हैं, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू। बाय द वे दिस इज, व्हाट इज दिस, इसका मीनिंग Equal to. ओके, Equal to. यस, दिस इज कॉल्ड अ इक्वल टू ऑपरेटर। मतलब ये क्या करेगा, वेदर माय नंबर 1 इज इक्वल टू 10 है कि नहीं, ये चेक करेगा, राइट। देन इसका, दिस इज Not Not equal equal to. to. Not equal to. then anything else I missed? This is, you know, greater than, less than, greater than, equal to, right, less than, equal to, anything I missed, something like this, ऐसा कुछ रहता है क्या, ऐसा कुछ रहता है, चेक कीजिए वर्क होता है क्या आपके उसमें। नहीं सर, ऐसा Whether कुछ this होता ही is नहीं। okay, let us see whether it is there or not, execute कीजिए। okay, this is not an invalid syntax। तो ये किस में रहता है, those DA7 DA8, आपको तो पता होना चाहिए किस में रहता है। 9 का I can understand, they cannot relate what it is। by the way, I guess, what about चलो quickly, I will give you one more hint, it is related with database, database से related है वो। Import some header files. CPP में यूज okay, किए थे। Actually, नहीं, I it's in want to, C. okay, C++ में क्या, okay, ठीक Yes. है, not an issue। I wanted to highlight कि SQL में that is called not equal to। जो लोगों का SQL हुआ है आपको पढ़ने की जरूरत है, ओके। दिस इज नॉट इक्वल टू रहता है ना, यस नो, रहता है कि नहीं, Use नहीं किया sir. ओके, फिर SQL में चेक करके देखिए whether it is there or not, है ना, Okay sir. Okay. ओके, गुड। चलो, सो पाइथन uses this not equal to, अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। then what I will do is, number 1 is 15, तो actually let's understand कि ये देखिए ये क्या करता है, if है, यहाँ पे मैं कुछ लॉजिक लिखता हूँ, called if number 1 is greater than 10। इसका मतलब अभी फिर मैंने कोलन दिया और यहाँ पे 3 स्टेटमेंट लिखे, है ना, जैसे हम फंक्शन में रखते थे, यहाँ पे डेफ आता था, ये नाम आता था, समथिंग लाइक दिस। तो यहाँ पे इफ आया है एंड देन ये कंडीशन है, कोलन है, कोलन के बाद ये है। तो जनरली इंडेंट कभी भी रहता है ना, तो इसको, इस नीचे के स्टेटमेंट को बोलते हैं ब्लॉक। इंडेंट के अंदर जो भी रहता है ना, इंडेंट के अंदर मतलब ये एक इंडेंट है, यहाँ से एक इंडेंट है, तो ये जो है ना, इसको बोलते हैं ब्लॉक। तो ये यहाँ पे स्टार्ट और यहाँ पे क्लोज हो रहा है, तो ये हो गया इफ ब्लॉक, क्योंकि ये इफ कोड के अंदर लिखा है मैंने, राइट, इफ के लिए ये है, इसलिए इफ ब्लॉक हो गया। देन अभी क्या होगा, इसका मतलब ये है, इफ के आगे ये जो कंडीशन है, ये कंडीशन ट्रू आती है तो ही मेरा इफ ब्लॉक रन होता है। दिस इज हाउ इट वर्क्स। कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट क्या करता है, इफ के आगे मुझे ट्रू चाहिए, ट्रू रहेगा तो मैं अंदर जाऊंगा, ट्रू नहीं रहेगा तो मैं बाहर से और नीचे जाऊंगा। बाहर से और नीचे मतलब ये इफ यहाँ पे लिखा है, फिर मैंने यहाँ पे लिखूंगा कि प्रिंट और समथिंग दूसरा प्रोग्राम, कुछ ऐसे प्रोग्राम आप लिखोगे, राइट, दिस इज हाउ यू राइट। और इसका मीनिंग क्या होगा कि इफ इसके अंदर मुझे यहाँ पे ट्रू मिला तो मैं अंदर जाके इफ का ब्लॉक रन करूंगा, नहीं मिला तो ये नहीं रन करूंगा, फिर मैं यहाँ जाऊंगा डायरेक्टली, ओके। दिस इज हाउ इट वर्क्स। इसका ही एप्लीकेशन बहुत सारे हैं नीचे। सो लेट अस अंडरस्टैंड। अभी मुझे बताइए, ये पहले तो मैं डिलीट कर देता हूँ। नंबर 1 कितना है, 15 है, ओके। लेट मी एग्जीक्यूट दिस कोड एंड टेल मी व्हाट हैपेंस। ये देखिए क्या बोल रहा है ये, I am inside if statement, number 1 is greater than 10, और ये स्टार स्टार प्रिंट हो रहा है 10 बार, क्योंकि ये कोड है यहाँ पे, है ना। मान लीजिए मेरा नंबर 1 है 8,
8 है. ओके, इफ आई एग्जीक्यूट, आउटपुट आ रहा है कुछ भी नहीं, बट कोड रन हुआ है क्या? ये देखिए यहाँ पे 23 है और कुछ नंबर चेंज होंगे, यहाँ पे 24 आए हैं, मतलब कोड रन हो रहा है, आउटपुट नहीं आ रहा है क्योंकि ये नंबर सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है ना, इसीलिए. अंडरस्टूड. इसको बोलते हैं कंडीशनल फ्लो स्टेटमेंट और कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट. मतलब कंट्रोल इफ के पास है, इफ छोड़ेगा तो मैं आगे वाले ब्लॉक रन होंगे, नहीं तो नहीं रन, है ना. तो सेम एक्चुअली लॉजिक क्या है ना, इफ क्या चेक करता है, इस आगे जो कंडीशन लिखा है इसका आंसर हमेशा ट्रू आना चाहिए, इसका आंसर हमेशा ट्रू आना चाहिए, देन ओनली इट विल गो डाउन, मतलब नीचे के अलग अलग ब्लॉक्स रन करेगा. फिर इंटरव्यूअर इज बिट स्मार्ट, वो क्या बोलेगा, इफ आई रिमूव कंडीशन राइट ई, तो रन होगा क्या? मैं ये एग्जीक्यूट करूंगा तो रन होगा? नहीं. आप सर, आपने तो बोला था सर यहाँ पे कंडीशन चाहिए, क्लियरली लिखा है कंडीशन चाहिए, बट यहाँ कंडीशन नहीं है, राइट? ऊपर की कंडीशन ये डिफरेंट है और रन, कंडीशन डिफरेंट है. यस. तो ये बाय द वे गिव मी आंसर, दिस प्रोग्राम विल रन और नॉट? यस और नॉट. नो में आंसर दीजिए क्विकली. हाउ मेनी आर नो? चलो थम्स डाउन कीजिए ऑनलाइन जो भी नो बोल रहे हैं. ओके, चलो ऑफलाइन नो, राइट. लेट मी एग्जीक्यूट द कोड. क्या हो गया? आई एम इनसाइड इफ स्टेटमेंट, नंबर इज ग्रेटर देन 10, मतलब ये लाइन रन तो हो रहा है, ये देखिए, है ना, वही पे है. सो अंडरलाइन जो आपको बताने का चीज ये है कि ये सिंटैक्स है. अल्टीमेटली आगे जाके इफ क्या चेक करता है, वेदर यहाँ पे ट्रू आंसर है या नहीं चेक करता है. तो आप कंडीशन से ट्रू लेके आओ, नहीं तो डायरेक्टली ट्रू लिखो, इफ के आगे ट्रू चाहिए. ये एक्चुअल उसका अंडरलाइन लॉजिक है, एज इन दिस इज व्हाट इट चेक्स. और ये सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सेम है. आप कहीं पे भी इफ यूज करो, जावा, सी, सी प्लस प्लस, सब जगह आपको यही मिलेगा, ऐसा लिखने के वहां पे कंडीशन चाहिए. ओके, ये ऐसा ही सिंटैक्स सब जगह पे मिलेगा. बट थोड़ा एक पॉइंट आगे जाके डीपर लेवल पे आप चेक करोगे तो एक्चुअली ये कंडीशन भी मैटर नहीं करता. ये क्या चेक करता है, आंसर चेक करता है, ना कि वहां पे कंडीशन है या नहीं है. उधर कंडीशन है या नहीं है ये चेक करना नॉट इफ्स जॉब, है ना. जस्ट FYI आपको थोड़ा प्रैक्टिस करने के लिए. चलो, सो व्हाट वी कैन डू इज, इसको ही थोड़ा और आगे, मतलब वी कैन ऑप्टिमाइज मोर. मान लीजिए मुझे ऐसा प्रिंट करना है, द गिवन नंबर इज इवन, इवन नंबर है या नहीं ये चेक करना है, राइट. तो मैं क्या कर सकता हूँ, एक नंबर इज इक्वल टू 15, इसको डायनामिक बनाना है, ऐसे करना है, इंट इनपुट इंटर योर नंबर, राइट. इंटर योर नंबर हो गया. फिर ये मैंने जो नंबर इंसर्ट किया है वो नंबर ऑड है या इवन है, इसका लॉजिक मुझे लिखना है. कैसे लिखूं मैं? मान लीजिए मुझे ऑड, ऑड का तो कंडीशन भूल जाते हैं, अभी के लिए इतना ही लिखिए, मुझे इवन है तो आउटपुट में आना चाहिए कि द नंबर इज इवन, ऐसे मुझे कुछ रन करना है. तो ओके, तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड कि कंडीशन बेस्ड आपको आउटपुट चाहिए. आपको आउटपुट किसके चाहिए, कंडीशन पे चाहिए, मतलब इवन है तो ही आउटपुट चाहिए, राइट. और आपको कुछ ना कुछ लॉजिक यूज करना है, फिर आंसर निकालना है. सो तीन. तो यहाँ पे आप डायरेक्टली कंडीशनल और कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट यूज कर सकते हो, क्योंकि आपको कंडीशन कुछ ना कुछ चेक करना है, देन आउटपुट निकालना है. तो मैं पहले तो इनपुट लेता हूँ, राइट. इनपुट, ये इनपुट स्टेप क्लियर, इसमें कुछ प्रॉब्लम है किसी को, इनपुट कैसे लेते हैं? नो, राइट. फिर उसके बाद लॉजिक लिखिए, लॉजिक, राइट, लॉजिक स्टेप. और इसी लॉजिक में द थर्ड स्टेप इज आउटपुट. तो मैं क्या कर सकता हूँ, दोनों को, लॉजिक एंड आउटपुट को यहाँ पे कंबाइन कर सकता हूँ और यहाँ पे आउटपुट भी कर सकता हूँ.
ओके, ये हो गया आउटपुट। ये देखिए अभी मैं क्या कर रहा हूँ समझिए, यहाँ पे एक तो नंबर इनपुट लिया, वो नंबर को चेक किया एम परसेंट टू म्हणजे बाकी, रिमाइंडर, रिमाइंडर डबल इक्वल टू मतलब जीरो के साथ इक्वल है कि नहीं है। ऑड एंड इवन नंबर कैसे चेक करते हैं, डिवाइडेड बाय टू, डिवाइड से टू से डिवाइड हो गया तो जीरो आने, इवन है नहीं तो ऑड है, तो डिवाइड टू से डिवाइड होता है मतलब क्या, रिमाइंडर जीरो आता है उसका, है ना। सो वो लॉजिक मैंने यहाँ लिखा, तो ये वैल्यू ट्रू आ गई, तो कहना ऐसे कि जो नीचे जाके द गिवन नंबर इज इवन बोल सकता हूँ मैं, है ना। यही मेरा लॉजिक है, तो यही मैंने इफ लगा के लिखा है, इफ माय नंबर प्रिंट, रन कीजिए, बोलिए कौन सा नंबर लिखो, इंटर माय नंबर, मेक इट 66, द गिवन नंबर 66 इज इवन। अभी देखिए एफ स्ट्रिंग का फायदा हो रहा है ना, आपको डायरेक्टली जो इंटर कर रहे हो वो आउटपुट में भी दिख रहा है, आउटपुट में भी दिख रहा है, क्योंकि ऐसे रैंडमली कुछ भी नंबर, मतलब द गिवन नंबर इज इवन, कौन सा गिवन नंबर, राइट। तो ये 66, रन कीजिए, डू इट फॉर 77, इंटर, इंटर किया, आउटपुट नहीं आया, बट कोड रन हुआ है क्या, हो गया है। सो अभी ये कंडीशन हैंडल करने के लिए, मतलब इफ नहीं रन हुआ तो उसके लिए एल्स ब्लॉक है, उसको बोलते हैं एल्स। तो मैं क्या करूंगा, एल्स लिखूंगा। अभी एल्स स्टेटमेंट कैसे लिखते हैं, सेम जैसे इफ लिखा, इफ तो मैं कंडीशन के ऊपर चेक करता था, कंडीशन ट्रू है तो नीचे जाता था, और कंडीशन फॉल्स है तो बंद, मतलब प्रोग्राम एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाता था। तो एल्स में क्या आएगा, सिर्फ एल्स आएगा, एल्स में फॉल्स है कि नहीं चेक नहीं करना है आपको, क्योंकि एल्स कब रन होगा, जब फॉल्स होगा तभी, जब ट्रू रहेगा तो एल्स का सवाल ही नहीं, इफ का रन हो गया ना डायरेक्टली, तो इसलिए मैंने एल्स का लिखा है यहाँ पे, राइट। एल स्टेटमेंट और एल्स कोलन नीचे स्टेटमेंट। सो नंबर 2 इज इक्वल टू 5, इफ नंबर 2 ग्रेटर देन 10 है तो आई एम इनसाइड इफ स्टेटमेंट एंड नंबर इज ग्रेटर देन 10, एल्स आई एम इनसाइड एल स्टेटमेंट, नंबर इज स्मॉलर देन 10। एग्जीक्यूट कीजिए, ये जो नंबर है मेरा 5 किसके अंदर जा रहा है, ये ग्रेटर देन 10 है क्या, यहाँ पे चेक कर रहा है, इसका आंसर क्या है, फॉल्स। तो इफ के आगे फॉल्स है तो नीचे आएगा एल्स में जाएगा, फिर तो एल्स में जाने के बाद वो एल्स वाले रन करेगा स्टेटमेंट। एल्स में क्या है, आई एम इनसाइड एल्स स्टेटमेंट लिखा है क्या इसने, आई एम इनसाइड एल्स एंड नंबर 2 इज स्मॉलर देन 10, 5 इज स्मॉलर देन 10, राइट। अभी इसको ग्रेटर कीजिए, मेक इट 15, रन कीजिए। अभी क्या बोल रहा है, आई एम इनसाइड इफ स्टेटमेंट, राइट, क्योंकि ये लॉजिक, यहाँ पे जो लॉजिक है ये क्या है, 15, 15 ग्रेटर देन 10, राइट, ये आएगा ट्रू, राइट। क्लियर सबको। सो ट्रू, ट्रू आने के बाद क्या आएगा, आई एम इनसाइड इफ स्टेटमेंट एंड ग्रेटर देन 10। क्लियर सबको। आई नो थोड़ा आज वी हैव एक्सटेंडेड फॉर 10 मिनट्स, बट आई वांट यू टू अंडरस्टैंड, ऐसे बीच में ब्रेक नहीं करना है, तो इसलिए आई एक्सटेंडेड। देयर इज वन मोर थिंग कॉल्ड एलिफ, एल्स इफ, और इफ एल्स ये ब्लॉक हो गया, बट एल इफ, एल्स इफ, उसका एल्स इफ ही नाम है, एलिफ भी बोलते हैं, एल्स इफ भी बोलते हैं, सो हम वो कल देखेंगे, नॉट एन इशू। सो आई वांट यू टू प्रैक्टिस लैम्डा फंक्शन का, प्रैक्टिस कीजिए जितने जितने फंक्शन हमने लिखे हैं, एंड देन स्टार्ट यूजिंग इफ एंड एल्स के लॉजिक। इसमें एक एज लीजिए, अभी वोटिंग शुरू है ना आज, तो टेक अ एज फ्रॉम वोटर्स, मतलब यूजर का एज लीजिए और चेक कीजिए वेदर दिस पर्सन इज एलिजिबल टू वोट और नॉट, है ना। ये सिंपल प्रोग्राम, क्लियर, ओके। और कुछ फंक्शन ले सकते हो आप, वेदर ऑड इवन का लिखिए, वेदर दिस पर्सन इज एलिजिबल, ड्राइविंग लाइसेंस देना चाहिए नहीं देना चाहिए ये लिखिए, वोटिंग है या नहीं वो लिखिए, और कुछ ऐसे छोटे छोटे एग्जांपल लिखिए जहाँ पे इफ एंड एल्स का आपको यूज करना
मतलब पढ़ाई। So clear everyone, homework भी clear है, and there is actually homework की एक फाइल भी है, if you check Google Drive के शीट में there is Python assignment, already assignment दिया है आपको, so you should, हाँ questions है 30-40 questions है, regular questions है, scenario based questions है, if you want I can give few more questions, but start practicing, now it is the right time, you should practice, है ना, अभी प्रैक्टिस वो क्वेश्चन आप कर सकते हो। क्लियर एवरीवन, ऑनलाइन क्लियर होमवर्क? सो विद दिस, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट एवरीवन, so we'll end here. If you have any question, maybe you can connect over WhatsApp. चलो, thank you, thanks a lot, we'll disconnect.